Today we have come to this Indrola Nature Park. This Indrola Nature Park is managed by GEER Foundation. GEER stands for Gujarat Ecological Education and Research Foundation. आज हम इंद्रोला नेचर पार्क में आए हैं. ये GEER फाउंडेशन द्वारा मैनेज करने में आता है. We are about to enter the nature park of Indrola. I also welcome you to this lovely park on behalf of GEER Foundation, Gandhinagar. We are about to enter Indrola Nature Park. We have what all things here: parking, dinosaur and fossil park, botanical garden, deer park, snake house, marine interpretation center, walk-in aviary, Indrola Nature Park Zoo. And this is the ticket window. We are entering the nature park, Indrola Park of Gandhinagar. It's a welcoming place and we have a lot more to see inside this park. This is the parking area. Eatables are allowed only till the parking. This is the main entrance of this park. A lovely place, and we are soon going to reach the dinosaur park area. At the entrance we can see the dinosaur and fossil park. इतना बड़ा डायनासोर. We are entering this dinosaur park. Along with dinosaur images and sculptures, we have a lot more informative things here: fossils, eggs, etc. Right at the entrance we have this inauguration stone and geological time scale. After entering, there is a passage. We are about to go on this walkway into the dinosaur park. You can see a dinosaur in the distance, far away. We are going to go near that also, and the forest area around it. Here we are about to approach a sculpture of dinosaur. They have also written what it is called. This one here is Allosaurus, and this one is Stegosaur.
ये कोना पौधा क्या है? This is also of order crocodilia. मैंने पारी है। वो तक तो पड़ा दे। બસ બસ ચાલ ना बात है मैंने। હા તો હું જતી રહું પપ્પા છોડ પેલા પપ્પા આગળ જતા રહે દેખ આગળ બીજો પાડીએ अगर बीजी कर આગળ બીજો પાડીએ Is an image of a nest having elongated legs, having eggs. શરૂ કર हाँ, નમસ્કાર ગુડ આફ્ટરનૂન नमस्कार. ઇન્દ્રોડા પ્રકૃતિ ઉદ્યાનના ડાયનોસોર પાર્કમાં હું કુસુમ સુથાર ગીર ફાઉન્ડેશન તરફથી આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું Thank you. નેચર પાર્ક છે 200થી વધારે પક્ષીઓ ખુલ્લામાં ફરે છે બર્ડ વોચિંગ માટેની આ સરસ મજાની જગ્યા છે પાર્ક ટોટલ 3 ભાગની અંદર વિભાજિત કરેલો છે સામેના ભાગમાં બોટોનિકલ ગાર્ડન છે 1000 જેટલી જાતિના વૃક્ષ છોડ અને વેલા મોજૂદ છે હિન્દી हिंदी वाले तो बता रहे मजा आओ. 7 पार्ट में उसे भी डिवाइड किया गया है कैक्टस हाउस ग्रीन हाउस आर्बोरेटम मेडिसिनल प्लांट फाइकस मैंग्रोव और ग्रासलैंड दूसरा विभाग है हमारा जू सेक्शन जिसमें इंजर्ड एनिमल बर्ड्स लाए जाते हैं डॉक्टर साहब ट्रीट करते हैं अगर फिर से वो नेचर में जा सकते हैं तो उसे छोड़ देते हैं नहीं जा सकते ऐसे एनिमल बर्ड का जू है
इसलिए आपने कोई भी बड़े जू देखे और ये जगह देखो, इसमें काफ़ी डिफरेंस है। मीडियम साइज का ये जू है हमारा। अब जिस जगह पे खड़े उस जगह का नाम है डायनासोर एंड फॉसिल पार्क। डायनासोर का मतलब है डेंजरस लिजर्ड, भयानक छिपकली। करोड़ों साल पहले धरती के ऊपर ये प्राणी थे। अभी कहीं पे भी डायनासोर्स नहीं है, पर हमारे गुजरात का सौभाग्य है कि गुजरात में से कच्छ, बालासिनोर, झालोद और दाहोद डिस्ट्रिक्ट में से उसके अंडे और हड्डियों के फॉसिल्स मिले हैं। इसलिए गुजरात का सबसे पहला डायनासोर पार्क 5 जून 2002 में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटित किया है, जो आप देखने जा रहे हैं। दूसरा पार्क बालासिनोर के पास इनॉग्रेट हुआ है। वहाँ पे गांव है राहियोली। उसको डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि वर्ल्ड की जितनी भी हैचरीज है उसमें से एक बहुत बड़ी वो हैचरी है कि जहाँ से बहुत सारी मात्रा में डायनासोर के एग्स के फॉसिल्स मिले हैं। और कच्छ का जो एरिया है उसे मॉडर्न जुरासिक कहा जाता है, क्योंकि वहाँ से जुरासिक पीरियड के प्लांट्स, इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट्स सभी के हमें फॉसिल्स मिले हैं। कच्छ में 2 फॉसिल पार्क है। एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने अपना खुद का फॉसिल पार्क बनाया है और एक दूसरा है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इन सीटू पार्क बनाया। ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। सिंगल सेल से लेके मैमल्स तक का इवोल्यूशन दिखाया गया है। हमारा पार्क हाईलाइट करता है ये मेसोजोइक एरा को, मतलब कि 22.5 करोड़ साल से 6.5 करोड़ साल का जो पीरियड है, उसी पीरियड में धरती के ऊपर ये डायनासोर एनिमल्स इवॉल्व हुए। 16 करोड़ साल तक इन्होंने लाइफ सर्वाइव की। 3 पीरियड है इसके, ट्राइसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। हमारे पार्क में जुरासिक, क्रिटेशियस और टर्सरी, ये तीनों पीरियड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के टेक्निकल सपोर्ट से डेवलप किए गए हैं। उसी पीरियड के फ्लावरिंग प्लांट के फॉसिल्स रखे हैं। बटरफ्लाई, एमोनाइट, स्टारफिश, कोरल, इनके भी फॉसिल्स और इम्प्रेशन है। लाइफ साइज डायनासोर के मॉडल, बोन्स और एग्स रखे हैं। जो 2 पांव पे खड़े हैं कार्निवस मांसाहारी प्राणी थे। 4 पांव वाले हर्बीवर शाकाहारी प्राणी थे। एक बड़ा सा डायनासोर आप देखेंगे ब्रोंटोसोरस, उसके नीचे नेट है। आगे के पोर्शन में 11 फीट लंबी उसके पांव की टुकड़ हड्डी रखी गई है। आप इमेज कर सकते हैं एलिफेंट की हाइट 11 फीट होती है। इतना सिर्फ पाँव है, उसके ऊपर बॉडी, मतलब कि ये कितने ह्यूज एनिमल्स थे। जो भी मॉडल्स यहाँ पे रखे गए हैं एग्जैक्ट साइज माप लेके बड़ौदा MSc के फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट ने कोशिश की है। एक मॉडल देखोगे आप राजा सोरस नर्मदेंसिस का, जिसको प्राउड ऑफ इंडिया या एशिया कहा जाता है, क्योंकि उसके फॉसिल सिर्फ हमारे गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच में नर्मदा कैनाल की खुदाई करते समय मिले। और उस समय 2 कंटिनेंट में डिवाइड थी, लोरेशिया और गोंडवाना। 2 से 5 कंटिनेंट में डिवाइड हुई, तब तक इनका अस्तित्व रहा। 6.5 करोड़ साल पहले हमारी अर्थ के नजदीक से मीटियोर गुजर रहा था। ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट होकर धरती के साथ उसकी जबरदस्त टक्कर हुई। काफ़ी कुदरती घटनाएं 10 या 20 लाख साल तक चलती रही। ये एनिमल्स परिस्थिति का मुकाबला नहीं कर पाए, जिनकी वजह से एक्सटिंक्ट हो गए, लुप्त हो गए, धरती के अंदर दबते गए। वो डिकम्पोज नहीं हुए, पर धीरे धीरे पत्थर में कन्वर्ट हो गए, जिसे इंग्लिश में हम फॉसिल कहते हैं, हिंदी गुजराती में जीवाश्मी कहते हैं। तो यहाँ पे जो कुछ भी देखो, अंडे, हड्डियाँ, लकड़ी, वो सब आपको पत्थर जैसा दिखाई देगा। तो काफ़ी विजिटर कहते हैं पत्थर और स्टेच्यू में क्या देखना है, चलो रियल चीज़ देखें। पर जिनको बनने में करोड़ों साल लगे हैं, उसको देखने में 10 मिनट भी नहीं लगती है। अगर बच्चे इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो इसके भी साइंटिस्ट बन सकते हैं, जिसे हम पैलिएंटोलॉजिस्ट कहते हैं। उसके बाद मैमल्स आए। एक मॉडल सैबरटूथ कैट का रखा है। आइस एज मूवी देखी हो तो उसमें दिखाया है कैट फैमिली का सबसे पहला एनिमल इवॉल्व हुआ। ह्यूमन इवोल्यूशन के मॉडल्स रखे हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे अर्थ सेक्शन डेवलप किया गया है, जिसमें इंफॉर्मेशन है सोलर सिस्टम की, अबाउट अर्थ, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट, वर्ल्ड ओशन, वर्ल्ड बायोम्स, इंडियन बायोम्स और गुजरात की पूरी इंफॉर्मेशन मैप के द्वारा दिखाई दी गई है। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ सकते हो। पेड़ पौधों को न तोड़े, एनिमल बर्ड को परेशान न करें, सेव एनर्जी, फूड और टाइम। प्लास्टिक बैग में आप भी शॉपिंग न करें, आसपास में भी सबको अलर्ट करें, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा हमें ये धरती पर प्लास्टिक का होने वाला है। आपने समय दिया, शांति से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपकी यात्रा शुभ रहे। जय हिंद। तो ये मीटियोर के कारण एक्सटिंक्ट हुए जी, ये मेन रीजन कहा जाता है। हाँ ऐसा नहीं है कि एक बार मीटियोर गिरा और सब तबाह हो गए। हाँ इमीडिएट रीजनल इफेक्ट्स हुई, जिसमें ब्लास्ट वेव, ब्रेजर, सुनामी, वेपरेशन ऑफ वाटर, वेपरेशन ऑफ रॉक और अर्थक्वेक में कुछ भी समझे उससे पहले काफ़ी स्पीसीज नष्ट हुई। शॉर्ट टर्म इफेक्ट हुई, जिसमें जंगल में आग लग गई, लावा निकला, उसमें भी काफ़ी नष्ट। और लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, उसमें एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल डार्कनेस, इसमें ये बिल्कुल सर्वाइव। ऐसा एक दिन में खत्म। ये पहली बार जानने को मिला। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू सर, इट्स माय प्लेजर। मैम आपने बहुत अच्छे से समझाया। हम इतनी बार आते हैं कभी, लेकिन इस तरह से देखा ही नहीं, हमें लगा कि ऐसे ही है। बट रियली थैंक यू। आप अपना नाम एक बार फिर से बताइए। मेरा नाम और कुसुम सुथार है। मैं मकर संक्रांति की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो Thank you very मच। much. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू मैम। Stegosaurus. Lovely statue. Here is an image of Cretaceous period. In the and old fossils of dinosaurs. We can see the stones in which tracks of dinosaur, their impressions of the foot are there. Few photographs depicting animals of that period. Wow, what do we have here? Just look at it. This one is also huge. Also known as terrible claw. Deinonychus. Sorry, it is pronounced as Deinonychus. These are fossils. They have been collected from various places in India. And outside as well. This has been collected from Bhuj. This is an image of a nest having elongatothelid, having eggs. These types of eggs and nests are rare, and they have been found in Kheda district of Gujarat. In the nests, the eggs occur either horizontally or inclined in a small saucer-shaped depressions. Now we have reached a place where we can see Himmatnagar sandstone plant fossils. These are the plant fossils found at Himmatnagar. What we see here, I hope you are able to see that properly. Yeah, this is an image of the same. Here we have an image of distribution and history of dinosaur eggs and nests. And this one here is Brontosaurus. Brontosaurus is also known as thunder lizard. Can you guess what are these? Yes, you guessed correctly. They are the dinosaur eggs. These were found in Panchmahal district. More fossils, and all these fossils have been arranged according to the dinosaur or the variety which is seen in that particular area. डायनासोर रिमेन्स, आप यहाँ पे डायनासोर के जो रिमेन्स हैं उसको भी देख सकते हैं. वी कैन सी द डायनासोर रिमेन्स. वाओ, व्हाट यू कैन सी इज Ramophonicus. I hope you will really love to come over here, enjoy these in person. But presently I want to bring all the images and details. Through this video, I hope you will be able to enjoy
all the things that are present over here in this park. We can see a water body also and sculpture. Yes, you guessed it correctly. It is a crocodile. See where I have come across this giant animal. Oh, he's really majestic and giant. It is Tyrannosaurus. Tyrannosaurus it is. ये ट्राइनोसॉरस है, इसको टायरेंट लिजार्ड भी कहा जाता है. This is the water body which we saw earlier. ये तालाब हमने पहले भी देखा था. इसके पास में ये एक और डायनासोर उसके बच्चे के साथ है. We can see a dinosaur with its young one. Oh, it's not known as dinosaur. It is Triceratops. This is Triceratops. Due to the light effect, you might not be able to see completely. So we will try to take photographs as well. Triceratops is with its baby, young one. ये ट्राइसेरोटॉप अपने बच्चे के साथ है. They have tried to emulate the original forest scene. इन लोगों ने बिल्कुल ओरिजिनल फॉरेस्ट जैसा बनाने की ट्राई किया है. Yes, now we have reached a really big, gigantic animal. Let's see what the name of this one is. It is Megalosaurus. This is also known as giant lizard. Here we are. ये giant lizard भी कहलाता है, जिसको राक्षसी कहा जा सके. है ना बड़ा? Okay, so what do we have here? हमारे पास यहाँ पे क्या है? देखिए, this is Rajasaurus. Nirmadsens. Nirmadsens. Difficult to pronounce though, but you can see the name. This Rajasaurus Nirmadensis 1982 में ढूंढा. used to be about 9 meters long and 3 meters tall. गुजरात में से मिला था ये. What do we have here? यहाँ पे क्या है हमारे पास? देखिए. ना खाली कच्छ गुजरात एवढं लकी. Iguana teeth. इग्वाना टीथ अपने दांत ही नहीं दिखा रही है. You can see some birds also here. यहाँ पे आपको पक्षी भी देखने को मिलेंगे. वाव, ओरिजिनल जब इसका पीरियड रहा होगा तो कैसे रहे होंगे, किस तरह से एक्सटिंक्शन हुआ, किस तरह से ये विलोप हुए, उसके बारे में एक चार्ट है. दिस चार्ट डिपिक्ट्स हाउ दे eloped, how they become extinct. What we can see here is a saber-toothed cat. यहाँ पे हम राक्षसी दांत वाला जानवर यानी शेर देख सकते हैं. अब क्या पता ये शेर हो या सिंह की प्रजाति हो, कोई भी दोनों में से एक हो सकता है.
यहाँ पे ये दिखाया गया है कि किस तरह से मंकी में से हम ह्यूमन बीइंग्स का उत्पत्ति हुई. Here they have shown how from a monkey human beings evolved. Slowly मैं सभी जो अलग अलग चीज़ें हैं उसको बता रहा हूँ. Slowly I am going to show you. First one was Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus. When it started using 2 legs more to become erect. Then Homo Neanderthal. Finally Homo sapiens, that is the present day human being, man. Now I'll go through this pathway further ahead. Typically forest depicted here. This is a lovely garden and you'll really enjoy moving about in this place. हम जो मगरमच्छ सोच रहे थे उसका नाम है बर्नी सैटिया. बर्नी सैटिया. हाँ, क्रोकोडाइल तो जरूर कहलाता है बिकॉज इट इज ऑफ द ऑर्डर क्रोकोडाइल. इट इज नोन एज बर्नी सैटिया. आर नियर द पॉन्ड. ये स्कल्पचर तालाब के पास हैं, तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य यहाँ पे बनाया गया है. कैन यू सी अ कैटफिश इन दिस पॉन्ड? इस पॉन्ड में आप कैटफिश देख सकते. यू कैन सी अ कैटफिश. Deinosuchus. This is also of order Crocodilia. इस पार्क में घूमने का आपको बहुत मज़ा आएगा. अभी तो वीडियो पे से आपको जितना देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, वो आप लीजिए. हमारा प्रयत्न रहेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जाए. This map is to show the introduction to soils. This one is to show the tectonic Gujarat related to earthquakes, earthquake zones, etc. in Gujarat. This map is to depict the geology of Gujarat. You can see the geology, note all the different structures, and these are details of the rocks, sedimentary and metamorphic rocks. Forest area within the park. We can see monkeys and peacocks in the garden. This map shows ecoregions of Gujarat, physiography and ecoregions of Gujarat state. Biographic zones of Gujarat and biographic zones of our country, India. Well, so here we have the biomes of whole world. You can see the world biomes here. Oceans of the world. You can see the oceans of the world. Tropic of Cancer is passing through Gujarat. We can see here Tropic of Cancer in the broken line.
and Tropic of Capricorn passing through Australia, South Africa, South America. ये देखते हुए आपको ख्याल आ जाएगा. You will be able to appreciate only by seeing. And this is 200 million years ago. I have come across charts depicting our solar system. हमारी जो सौरमंडल है उसके बारे में चार्ट्स हैं. सूरज, मरकरी, वीनस, अवर अर्थ, हमारा अर्थ, हमारा मून, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून. आपको देखना है कि अर्थ में पृथ्वी के अंदर क्या है. तो आइए ले चलते हैं आपको पृथ्वी के अंदर. Here we take you to the core of the earth. You can see the core of the earth here, and you can see the core of our garden with peacock in it. मैं कहाँ से निकली हूँ?